میرا نام مسکان ہے۔ میں یتیم لاوارث تھی اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب سے پیدا ہوئی تھی تب سے اب تک دکھوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اپنے باپ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ابھی چھوٹی سی تھی کہ ماں بھی بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چل بسی۔ شاید وہ میرا بوجھ زیادہ دنوں تک اٹھا نہ سکتی تھی۔ یوں معصومیت کے ابتدائی دنوں میں ہی دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئی تھی۔ ایسے بچوں کے ساتھ زمانہ جو سلوک کرتا ہے وہی میرے ساتھ ہونے لگا۔ کبھی ایک رشتے دار اور کبھی دوسرے گھر پر پرورش پانے لگی۔ ان کے بھرے پورے کنبے میں بھی ایک یتیم بچے کی گنجائش نہ نکل سکتی تھی۔ مستقل ذمہ داری قبول کرنے پر کوئی تیار نہ تھا۔ ماں کی ایک رشتے دار کو ترس آ گیا۔ نیلم خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ اگرچہ سگے ماموں خالہ سبھی موجود تھے لیکن کسی نزدیک رشتے دار نے مجھے گود نہ لیا۔ خالہ نیلم کوئی امیر عورت نہ تھی مگر اپنے بچپن کی محرومیاں ان کو یاد تھی۔ وہ خود سلائی کر کے میری پرورش اچھے طریقے سے کرنے لگی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں 17 برس کی ہو گئی۔ خالہ خود غربت کی زندگی جی رہی تھی لہٰذا ان کا معاشرے میں کوئی خاص مقام نہ تھا۔ میرے لیے کسی اچھے گھر سے رشتہ کہاں سے آتا؟ وہ شریف اور سیدھی سادی خاتون تھی۔ چالاکی ان میں نام کو نہ تھی۔ محلے پڑوسی کے لوگ جہاں ان کی عزت کرتے تھے وہاں روپیے پیسے نہ ہونے کے سبب انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ حتیٰ کہ تقریبات میں صرف اسی وجہ سے مدعو کیا جاتا تھا کہ خالہ نیلم آ کر کچھ کاموں میں ہاتھ بٹا دیں گی۔ مجھ میں دیگر خوبیاں خالہ کی تربیت سے آئی تھی لیکن ایک خوبی قدرت نے خود اپنی مہربانی سے عطا کی تھی کہ میری شکل و صورت بہت اچھی بنائی تھی۔ ذرا بڑی ہوئی تو میری خوبصورتی کے تذکرے ہونے لگے۔ شکل اچھی ہو اور لڑکی لاوارث ہو تو وہ زمانے کی نظروں میں کھٹکنے لگتی ہے۔ میں بھی محلے کے آوارہ نوجوانوں کی نگاہوں کی زد میں آ گئی۔ وہ چیلوں اور کووں کی مانند خالہ کے مکان کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ نیلم خالہ نے اسی محلے میں عمر گزاری تھی۔ بیوگی کے بعد شرافت سے محنت مزدوری میں جیون گزار دیا تھا لہٰذا کسی کی ہمت نہ تھی کہ مجھ پر انگلی اٹھاتا۔ خالہ نے بھی مجھے کڑی نگرانی میں پالا تھا۔ ابھی میں 9 برس کی تھی کہ میرا اکیلے گھر سے نکلنا بند کرا دیا۔ جہاں خود جاتی ساتھ لے جاتی۔ سودا صرف لینے نکلتی تو مکان کے بیرونی دروازے کو باہر سے تالا لگا دیتی۔ بچپن میں خود اسکول چھوڑنے اور لینے جاتی تھی۔ مجھے زمانے کی سمجھ نہ تھی اور عمر ہی کتنی تھی۔ خالہ نے خود تکلیفیں سہی مگر مجھے ان تکلیفوں سے بچائے رکھا۔ گھر کی کھڑکیوں سے جھانکنے بھی نہ دیتی تھی۔ میری کوئی سہیلی نہ تھی۔ وہ خود ہی میری ماں تھی اور خود ہی سہیلی تھی۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ اتنی باشعور تھی کہ فارغ وقت میں میرے ساتھ لوڈو کھیلتی تاکہ میری روح کو خوشی اور سکون کے لمحات میسر رہیں۔ ہر عمر کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ بے شک 8ویں کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی لیکن اب باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر کی کوئی کھڑکی کھلی نہ ہوتی تو چھت سے جھانک کر محلے کا نظارہ کرنے کی خواہش دل میں انگڑائیاں لینے لگتی۔ ایک روز خالہ سو رہی تھی۔ چھت پر چڑھ کر میں گلی کا نظارہ کر رہی تھی کہ ایک اوباش لڑکے کی مجھ پر نگاہ پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے تو گلی میں جیسے ڈیرا ہی جما لیا۔ جب خالہ کسی کام سے نکلتی وہ ہمارے گھر کے نزدیک موجود ہوتا۔ اس لڑکے کا نام قمر تھا۔ وہ چھوٹا ہوا بدماش تھا۔ خالہ کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم دے دیا اور وہ پریشان رہنے لگی۔ اب ان کو احساس ہو گیا کہ یتیم بچے کو پالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو اپنے گھر کا کرنا۔ یہ کام بیوہ خالہ کے لیے دشوار تھا۔ محلے کے ہر اچھے گھر میں جا کر انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ کوئی ان کی بیٹی کے لیے رشتہ بتائیں تاکہ وہ سکھ چین کی نیند سو سکے۔ آخر ایک پڑوسن نے مسئلہ حل کیا۔ اس نے خالہ کو تسلی دی کہ ان کی بھانجی ملتان میں رہتی ہے اور وہ رشتے کروانے والی ایک عورت کو جانتی ہے۔ فون پر کچھ دن بھانجی سے رابطہ کرنے کے بعد پڑوسن نے خوشخبری دی کہ ایک اچھے گھرانے کا رشتہ مل گیا ہے۔ وہ جلد ہی لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ ہفتہ گزرا کہ پڑوسن نے نوید دی کل وہ لوگ ملتان سے میرے یہاں پہنچیں گے۔ خالہ نیلم نے کہا بہن تم ہی ان لوگوں کو ٹہرانے اور مہمانداری کا انتظام کرنا۔ رشتے کا معاملہ ہے، میرے گھر میں تو بٹھانے کو مناسب صوفہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اچھے برتن ہیں۔ جس پر وہ کہنے لگی تم فکر نہ کرو نیلم، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے۔ میں ہی ان لوگوں کو ٹہراؤں گی اور میں ہی خاطر تواضع کروں گی۔ تمہارے گھر بس وہ بچی کو ایک نظر دیکھنے آئیں گے۔ خوشی ملی کہ ملتان والے مہمان آ پہنچے ہیں۔ خالہ نے مجھے پہننے کو سب سے اچھا جوڑا جو ان کی نظر میں تھا وہ نکال دیا اور گھر کی خوب صفائی ستھرائی کر دی۔ بس یہی اہتمام وہ کر سکتی تھی۔ لڑکا پڑوس میں بیٹھا تھا اور اس کی ماں ہمارے گھر مجھے دیکھنے آئی۔ انہوں نے مجھے پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ صورت لاکھوں میں ایک تھی اور یتیمی کے سوا مجھ میں کوئی عیب نہ تھا۔ عورت نے خوش ہو کر رشتہ منظور کر لیا تو خالہ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ انجانے
लोगों में रिश्ता तय हो गया। खाला का दिल डरता था, मगर पड़ोसन ने हिम्मत बनाई रखी कि अच्छे और शरीफ लोग हैं, घबराओ नहीं। वालिदैन तो सिर्फ घर देखते हैं, किस्मत नहीं बना सकते। दुआ करो तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हों। वो शादी की तारीख रख कर चली गई। खाला ने रुखसती के लिए 1 माह की मोहलत मांगी थी। उस दौरान पड़ोसन की मदद से मेरे जहेज के चंद जोड़े और कुछ बर्तन वगैरह खरीद लिए गए। हालांकि उन लोगों ने कहा था कि हमें जहेज की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। शादी वाले रोज़ मोहल्ले में से चंद खवातीन आई, मगर सभी उस शादी पर मशकूक थे कि अनजान लोगों में दूर शहर से रिश्ता आया था। काफ़ी हैरान थे, मगर खाला से किसी ने कुछ ना कहा, क्योंकि नीलम बीबी की हिम्मत के वो मुअत्तरिफ थे जिन्होंने मुझे पाला पोसा था। किसी रिश्तेदार ने इतना अरसा खबर न ली थी। आज कोई कैसे इतराज़ कर सकता था जब ज़रूरत के दिनों में वो लाताल्लुक रहे थे। पड़ोसन की बेटियों ने मुझे सज संवार कर दुल्हन बना दिया। घर में मेहमान औरतें थी, मगर खामोश थी, गोया शादी के घर में सन्नाटे का आलम था। जब दूल्हा घर में आ गया तो देखने वालों पर बिजली गिर गई। ये शख्स किसी तौर से मेरे जोड़ का न था। उम्र भी 30 वर्ष थी, पुख्ता उम्र का था, जबकि मैं अभी बच्ची थी। ताहम तमाम लड़कियों से ज्यादा समझदार थी। निकाह और गवाहों के इंतजामात भी नहीं किए थे। कुछ मोहल्लेदार मेरी शादी में आए, लेकिन हर चेहरा सोच में डूबा था। उन्हें लगता था कि बेचारी बेवा और उसकी यतीम ले पालक बच्ची के साथ शादी के नाम पर जरूर कोई फ्रॉड हुआ है, लेकिन इखलाकी जुर्रत किसी में न थी। सबकी जुबानें बंद थी कि ऐन शादी के वक्त मामला गड़बड़ हो गया तो तमाम जिम्मेदारी उन पर पड़ जाएगी। फिर कौन कब मुझे यतीम को डोली चढ़ाएगा। सभी ने यही सोचा कि अल्लाह मालिक है, अब जो हो रहा है होने दो। शाम को निकाह हुआ और रात 8 बजे बारात रुखसत हो गई। लड़के का घर मुल्तान से नजदीक किसी गांव में था। उन्होंने वलीमे की दावत दी, मगर लड़की वालों की तरफ से कोई ना गया। शादी के बाद अख्तर ने कई बार खाला से बात कराई। फोन पड़ोसन के घर था, वो खाला को बुला लेती और मैं बात कर लेती। वो पूछती कि क्या हाल है, तुम खुश तो हो, और मैं जवाब देती कि सब ठीक है, आप फिक्रमंद ना हो। यूं सब ठीक था, लेकिन अख्तर की सूरत, शक्ल और उम्र से ये रिश्ता मेरे जोड़ का ना था। अख्तर मेरे शोहर का नाम था। खैर, फिर भी ये सोचकर समझौता किया कि चलो मैं अपने घर की तो हो गई और खाला के सर से फिक्र खत्म हुई। उनके बाद मेरा कौन था, कम अज कम अपना घर तो है। मर्द की उम्र, शक्ल का क्या करना। तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत पनाहगाह मेरी अव्वलीन ज़रूरत थी, जो मैसर आ गई थी। मैं अतात गुजार थी। खाला ने तरबियत ही ऐसी दी थी, हर तरह के हालात से समझौता करने की सलाहियत मुझ में थी। लेकिन घर का माहौल घर जैसा न था, बल्कि अजीब तरह का माहौल था। आस पड़ोस से कोई आता जाता न था। किसी औरत ने इस घर में कदम न रखा। सिर्फ अख्तर के दोस्त आए थे, जिनको वो बैठक में बिठा देते। यकीनन ये उनकी कारोबारी दोस्ती थी। घर में खुशहाली थी। कोई ससुराल से ना आया। सास, नंद, देवर, जेठ, जिठानी, ऐसा कोई रिश्ता जाहिर न हुआ जैसे कि अख्तर का कोई ना हो और ये इस दुनिया में अकेले हों। जो औरत माँ बनकर रिश्ता लेने साथ आई थी, वो अब भी घर में थी, मगर वो खामोश तबीयत, इस कदर के जैसी गूंगी हो, चुपचाप घर का कामकाज करती रहती और मुझसे कम ही गुफ्तगू करती। सच कहती हूँ कि मुख्तसर अरसे में इस खामोशी से तंग आ गई और मेरी जुबान बातें करने को तरसने लगी। अगरचे अपने घर में खामोश रहती थी और खाला ज्यादातर काम में मसरूफ होती थी, लेकिन वहाँ कब्रिस्तान जैसी खामोशी तो फिर भी ना थी। जल्द ही इस फिजा में दम घुटता महसूस होने लगा। मैंने औरत से घुलने मिलने की कोशिश की, मगर उसने फासला रखा। वो मुझसे दूर रहने को बेहतर समझती थी। ये वही औरत थी जो पहले अख्तर की माँ बनकर आई। फिर मियाँ ने बताया कि उसने मुझे पाला है, लिहाजा एहतरामन माँ कहता हूँ, वरना ये माँ नहीं है बल्कि मेरी मुलाजमा है। उसका नाम कलसूम बीबी था। वो एक दिन खाना पका रही थी कि दुपट्टे में आग लग गई। मेरे सिवा वहाँ कोई ना था। मैंने दौड़कर जलते दुपट्टे को हाथों से मसल मसल कर आग बुझाई, जिससे मेरे हाथ जलस गए, मगर अम्मा कलसूम जल मरने से बच गई। ताहम कमीज के एक हिस्से को आग ने कंधे के पास से राख कर दिया और उस जगह उनके बदन पर आबले पड़ गए। अम्मा कलसूम की मैंने अच्छी तरह से देखभाल की और उनके जख्म जल्द भर गए। मेरे इस एहसास पर वो बहुत मशकूर हुई और मुझसे प्यार करने लगी। अब मैं उनको मुलाजमा नहीं, अम्मा कलसूम कहकर बुलाती थी और वो भी मुझे माँ की तरह चाहती। शादी के 3 माह बाद अख्तर के पास कुछ लोग किसी शहर से आकर मेहमान ठहरे, तो उनको देखकर अम्मा कलसूम बहुत परेशान हो गई। मैं समझी कि अम्मा के जख्म अभी तकलीफ करते हैं, वो खाने पकाने से परेशान हो रही हैं। तब मैं किचन में खुद मेहमानों का खाना तैयार करवाने में उनकी भरपूर मदद करने लगी। ये सच है कि अख्तर मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो नहीं चाहता था कि मैं घर के किसी काम को हाथ लगाऊं। अच्छा खाना और आराम मुझे मैसर था, तभी मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी।
रंग रूप था कि निखरता जा रहा था। एक रोज अख्तर ने कहा, तुम अपनी खाला के लिए उदास हो गई होगी, चलो तुम्हें उनसे मिला लाता हूँ। मैं खानेवाल जाने को तैयार हो गई। मेरा दिल भी उदास था, क्यों ना होता, खाला ने तो मुझे माँ बनकर पाला था। जब मैं जाने को तैयार होने लगी तो अम्मा बहुत परेशान हो गई, जैसे कि वो मुझे किसी मुसीबत के मुंह में जाते देख रही हो। कई बार मेरे करीब आई, कुछ कहने को मुंह खोला, लेकिन कह ना सकी। अख्तर का खौफ गालिब था। बिल आखिर मौका मिल गया और मैंने किचन में जाकर चुपके से कसम देकर पूछा कि अम्मा सच बता दो, क्या बात है? कुछ ऐसा मामला जरूर है जो तुम कहना भी चाह रही हो और कह नहीं पा रही हो। यकीन रखो, मैं किसी से कुछ ना कहूंगी। तब वो डरते डरते बोली, मुस्कान बेटी, ये शख्स जो तुम्हारा नाम निहाद शोहर बना हुआ है, औरतों का व्यापारी है। इस तरह शादियां करके लावारिस कम उम्र लड़कियां लाता है और फिर बेच देता है। ये अब तुम्हें कराची ले जा रहा है दाम खड़े करने। हो सके तो रेल में से कहीं उतर जाना और माँ के पास चली जाना, बस और ज्यादा मैं नहीं बता सकती। ये सुनकर कि मेरा सौदा हो गया है और अब मैं खरीदारों के हवाले होने को ले जाई जा रही हूँ, ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इस सफर को रोक लेना मेरे बस में न था, लिहाजा चुपचाप अख्तर के हमरा रेलवे स्टेशन पर आ गई। वो मुझे जनाना वेटिंग रूम में बिठाकर चला गया, क्योंकि रेलगाड़ी के आने में कुछ वक्त था। मैं परेशान बैठी कि एक उम्र रसीदा मुसाफिर खातून जो किसी अच्छे घराने की लगती थी मुझसे पूछने लगी, क्यों परेशान हूँ? इस वक्त वेटिंग रूम में उसके और मेरे सिवा कोई ना था। मैंने हिम्मत करके अपने सवाल से आगाह करके मदद की दरख्वास्त की। उसके बैग में एक बुर्का था। उसने कहा कि मेरी बेटी ने फरमाइश की थी, उसके लिए खरीदा है, तुम पहन लो और अभी मेरे साथ स्टेशन से बाहर निकलो, वरना तुम्हारे बचाव का इसके सिवा और कोई दूसरा हल नहीं। उसने मेरी खातिर अपना सफर मुलतवी कर दिया। मैंने औरत की हिदायत के मुताबिक अमल किया और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गई। औरत ने टैक्सी ली और मुझे अपने ठिकाने पर ले आई। यहाँ आकर मालूम हुआ कि वो औरत भी सही नहीं है और उसकी 2 बेटियां हैं जो स्टेज ड्रामा में काम करती हैं। गोया आसमान से गिरा खजूर में अटका। लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। उसका ताल्लुक इस शोबे से जरूर था, मगर वो औरत बुरी नहीं थी। उसने मेरी खाला का नंबर मांगा। मैंने पड़ोसियों का नंबर दिया, उन्हें फोन किया तो पड़ोसन ने बताया कि तुम्हारी खाला को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, कल रात उनका इंतकाल हो गया है। तुम्हारे शोहर को फोन करते रहे मगर उनका फोन बंद था। पड़ोसन की बात सुनकर मैं रोने लगी, खूब जी भरकर रो ली। तो उस औरत ने कहा, बेटी अब तुम्हारी क्या मर्जी है, कहाँ जाना चाहती हो? जहाँ कहती हो तुम्हें पहुँचा आती हूँ। मैंने जवाब दिया, आंटी मैं कहाँ का बताऊँ, इस दुनिया में अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अच्छा तो फिर मेरे पास रह जाओ, मेरी 2 बेटियां हैं, तीसरी तुम होगी। उस औरत जिसका नाम रुबीना था, उसका इखलाक इतना अच्छा था कि मैं उनकी बेटी बनकर उनके घर में रहने लगी। पहले तो कहीं आती जाती न थी, वो बेटियों के साथ स्टेज ड्रामों में परफॉर्म करने चली जाती थी, जबकि मैं उनका खाना पकाकर रख देती थी और घर का काम कर देती। रफ्ता रफ्ता उनके मुशाहबत में दिलचस्पी लेने लगी और साथ जाने लगी। एक रोज एक फिल्म प्रोड्यूसर की नजर मुझ पर पड़ गई तो उन्होंने खाला से इजहार किया कि इस लड़की को फिल्म में काम करने दो, ये बहुत मशहूर फिल्म स्टार बनेगी। खाला ने कहा, ये अगर खुद चाहेगी तो रोकूंगी नहीं, अगर नहीं चाहेगी तो इस काम के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगी। ये एक शरीफ घराने की बच्ची है और मेरी पनाह में है। मैं इसके लिए किसी अच्छे घराने का रिश्ता तलाश कर रही हूँ ताकि अपने घर की हो जाए और इज्जत की जिंदगी गुजारे। फिल्म प्रोड्यूसर अगरचे मायूस हुआ मगर उसके दिल को खाला की बात लगी। उसने कोशिश करके मेरा रिश्ता तलाश किया, खाला को बताया और यूं मेरी शादी एक मतवस्त शरीफ घराने में हो गई। ये बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने मेरी कदर की। शोहर का एक छोटा सा जनरल स्टोर था और गुजारा ठीक तरह हो रहा था। सास और नंद के अलावा 3 छोटे देवर थे जो पढ़ रहे थे। शाम को मेरे शोहर के जनरल स्टोर पर उनका हाथ बटाते थे और मेहनती थे। जल्द ही कारोबार ने तरक्की की। कुछ जरी जमीन देहात में थी। गांव के लोगों ने विरासत के कागजात निकलवाए तो मेरे शोहर और उनकी बहन भाइयों के नाम जमीन निकली जो उन्हें मिल गई। उनको बेचकर उन्होंने रुपया कारोबार में डाला और दुकान बड़ी कर ली। अब दौलत भी घर में आने लगी। मैं अपने शोहर के साथ खुशोकरम आबाद हो गई। बुरे दिन खत्म हो गए और अल्लाह ने गोया मेरी सुन ली। 2 साल सुख और सुकून से गुजरे, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। एक रोज रियाज दुकान का माल लेने लाहौर गए, जहां वो फसादात का शिकार हो गए और मेरे नसीब पर एक बार फिर सियाही पड़ गई। चंद दिन सास और देवरों ने रखा, फिर उनका सलूक मेरे साथ बदलने लगा। सास समझती थी कि मेरी नहूसत से उनके घर में तबाही आई है। जब उनका रवैया नाकाबिल बर्दाश्त हो गया तो मैंने खाला को फोन कर दिया। यूं वो मुझे अपने पास ले आई। वो फिल्म प्रोड्यूसर अब भी उनके घर आता था और उनकी बेटियां उसकी तवस्त से फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल करने लगी थी। मुझे दोबारा खाला के पास देखा तो फिर से फिल्म में काम करने की ऑफर की। इस बार खाला ने भी कहा कि तुम किस्मत आजमाई करो। वो साहब बार बार इसरार कर रही हैं, क्या
खबर तुम पर दौलत और शोहरत के दरवाजे खुल जाएं और मेरे भी दिन फिर जाएं। मेरा भी कोई ना था। मैंने खाला और प्रोड्यूसर साहब का कहना मान लिया। शुरू में मैंने एक दो छोटे रोल दिए जो मैंने खुशी से निभाए, तो उन्होंने एक फिल्म में साइड हीरोइन का रोल दिलवा दिया। फिल्म बेहद कामयाब रही। उसके बाद तो फिल्मी माहिदों को तांता बन गया। खाला की सरपरस्ती में चंद फिल्मों की जो हिट हो गई और मैं एक मशहूर अदाकारा बन गई। शायद कुदरत को यही मंजूर था। दौलत अब मेरे घर की बांदी थी और शोहरत मेरे कदम चूम रही थी। मेरी दौलत की कुल मुख्तार मेरी सरपरस्त खाला बन गई, बल्कि मैंने उनको बनाया। फिल्म में काम करना भी मैंने उनकी खातिर मंजूर किया था, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी लड़कियां भी फिल्म स्टार बने। वो तो ना बन सकी, लेकिन मैं एक यतीम बच्ची और शर्मीली सी लड़की मशहूर एक्टर और टॉप की हीरोइन बन गई। जब किसी फिल्म का मुआवजा मिलता, खाला को दे देती। वो अपनी मर्जी से खर्च करती। उन्होंने मेरे लिए गाड़ी ली और आलीशान घर खरीदा। खाला ने मेरी दिल से मदद की, तो मैंने भी दिल से उनके साथ प्यार किया। उनको माँ का दर्जा दिया, क्योंकि उनका मन अनमोल और खूबसूरत था। जब तक वो जिंदा रही, मेरा ख्याल एक माँ की तरह करती रही। उनके इंतकाल के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं फिर से इस दुनिया में अकेली हो गई हूँ। अब मैं समझदार और तजुर्बाकार थी और दुनिया को जान पहचान गई थी। अच्छे बुरे की परख हो चुकी थी। मेरी जिंदगी में एक शख्स आया जो मुझसे बेहद प्यार करता था। मैंने बतौर जीवन साथी उसको मुंतखब कर लिया और फिल्म लाइन को खैराबाद कहकर अपना घर बसाया। कुछ अरसे बाद हम दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए, जहां उनकी आमदनी अच्छी है और हम पुरसुकून और खुशनुमा जिंदगी अपने बच्चों के साथ बसर कर रहे हैं। आज अपनी जिंदगी पर शुक्र अदा करती हूँ और सोचती हूँ कि खुदा जब चाहे जहाँ चाहे पहुँचा दे। इंसान के बस में कुछ नहीं है, सब कुछ उसी तकदीर बनाने वाले के इख्तियार में है। मेरी चच्ची का एक ही बेटा था जिसका नाम असद था। असद जब 4 साल का हुआ तो चच्ची उसे अपने साथ लेकर बैरून मुल्क चली गई थी, जहां मेरे चचा का बहुत बड़ा कारोबार था और वो वहां काफी हद तक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। 4 साल पहले चच्ची जब अपने मुल्क वापस आई तो हम सब बहुत खुश हुए। चच्ची का बेटा भी अब जवान हो चुका था, इसलिए चच्ची ने आते ही अपने बेटे की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैंने अपने कजन असद को काफी सालों के बाद देखा था, इसलिए मुझे उसका रवैया थोड़ा अजीब सा लगा था, या शायद ये मेरी ही गलत फहमी थी। खैर, चच्ची ने असद के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की तलाश कर ली थी और फिर रिश्ता तय होने के चंद दिन बाद ही शादी का दिन आन पहुंचा। शादी वाली रात हम सब दुल्हन को खुद असद के कमरे में छोड़कर आए थे, लेकिन सुबह जब हम उसको जगाने के लिए गए तो कमरे में मेरा कजन असद अकेला था। उसकी बीवी उसके साथ नहीं थी। पूरे घर में हंगामा मच गया कि दुल्हन गायब हो गई है, लेकिन मेरा कजन असद बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। सबने असद से पूछने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी दुल्हन कहाँ है, मगर वो चुप करके बैठा रहा। कुछ दिन वहां गुजारने के बाद हम सब अपने घर आ गए। इस बात को काफी महीने गुजर जाने के बाद चच्ची एक बार फिर हमारे घर आई। दरअसल वो अपने बेटे की दूसरी शादी का कार्ड देने आई थी। खैर, हमने इस बार भी शादी पर जाने की खूब तैयारियां की और फिर चच्ची के घर तशरीफ ले गए। इस बार मेरा कजन बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन असद की दूसरी शादी पर भी वही तमाशा हुआ। शादी की अगली सुबह दुल्हन कमरे से गायब थी। हम सब बहुत हैरान और परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा था। असद से पूछते तो वो कहता कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। हालांकि दुल्हन को भी किसी ने कमरे से बाहर जाते नहीं देखा था और ना ही वो कमरे में मौजूद होती थी। आखिर वो कहाँ जाती थी? पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी कुछ पता न चला कि आखिर ये माजरा क्या है। अब असद ने तीसरी शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन चच्ची ने उसके लाख मना करने के बावजूद भी कुछ महीनों बाद उसकी तीसरी शादी कर दी। मगर अब तो पूरे खानदान में चच्ची का बेटा मशहूर हो गया था, क्योंकि उसकी तीसरी बीवी भी शादी की रात गायब हो चुकी थी। इस मसले को लेकर चच्ची इंतहाई परेशान थी। एक दिन वो हमारे घर आई तो मेरी माँ के पैरों में गिर गई और असद के लिए मेरा रिश्ता मांगने लग गई। मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया तो चच्ची मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और फिर मेरे कान में कहने लगी, बेटी मैं जानती हूँ तुम डॉक्टर बनना चाहती हो और तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगर तुम मेरे बेटे की पहली बीवियों का राज मालूम करके मुझे बता दोगी कि वो कहाँ जाती हैं, तो मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूंगी। चच्ची के ऑफर सुनकर मैंने अम्मी से जिद की मेरी शादी चच्ची के बेटे असद से करवा दे। मेरी माँ राजी नहीं थी, मगर मेरी वजह से मजबूर हो गई और यूं मैं असद की चौथी बीवी बनने की तैयारियां करने लगी। शादी से पहले मुझे तरह तरह के ख्यालात आने लगे
کہ کہیں میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، اور کبھی مجھے لگتا کہ اسد کے کمرے میں جن بھوت ہوں گے جو اس کی بیویوں کو غائب کر دیتے ہوں گے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں نے اب حامی بھر لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیر، شادی کا دن بھی آن پہنچا اور میری حالت خراب ہونے لگی کہ آگے کیا ہوگا۔ نکاح کے بعد چچی نے مجھے میرے شوہر کے کمرے میں چھوڑ دیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ 15 منٹ گزرنے کے بعد اسد کمرے میں آیا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم بہت ڈری ہوئی ہو، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری بیوی مجھے کیوں چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگا۔ مجھے اسد پر ترس آنے لگا تھا اور اس کی باتیں سن کر یقین ہونے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ خیر، منہ دکھائی پر اس نے مجھے ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی اور پھر مجھے دودھ کا گلاس دیا کہ یہ پی لو۔ میں نے دودھ کا گلاس پی لیا اور دودھ پیتے ہی مجھے چکر آنے لگے۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ شاید میرے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو اس کی پہلی بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن جب میں صبح اٹھی تو میں کمرے میں ہی موجود تھی۔ میرا شوہر اسد کہنے لگا، تمہارا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، وہ رات کو تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے میں کبھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ آخر میں نے اپنے شوہر کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ولیمے کی رات میں نے دودھ کے گلاس بدل دیے۔ اسد نے جیسے ہی دودھ پیا تو کچھ لمحوں کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس کا موبائل فون چیک کرنے کی کوشش کی، مگر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ اسد کی پہلی بیویوں کا راز اسی کمرے میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ دلہنوں کو کمرے سے یا گھر سے باہر جاتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پورا کمرہ اچھی طرح سے چھان مارا، لیکن مجھے کوئی نشانی یا ثبوت نہیں ملا۔ اس راز سے پردہ ہٹانے کے لیے میں نے ایک پلان بنایا اور اگلی رات میں نے اپنے شوہر اسد کے سامنے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں اٹھوں گی تو وہ کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن جب کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی بڑی سی ٹرے تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے کمرے میں لگی الماری کو تھوڑا سا دھکا دیا تو وہ کھل گئی اور اس میں راستہ بن گیا۔ میرا یہ دیکھ کر حیرت سے منہ کھل گیا کہ الماری میں ایک تہہ خانہ تھا۔ میں بھی 10 منٹ گزرنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے اس الماری سے تہہ خانے میں چلی گئی، اور جب سیڑھیوں سے نیچے اتری تو نیچے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تہہ خانے میں میرے شوہر کی تینوں بیویاں رسیوں سے قید تھی اور وہ باری باری سب کو کھانا دے رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر چیختے ہوئے باہر بھاگی اور چچی کو آواز دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والے اکٹھے ہو گئے اور سارے نیچے تہہ خانے میں موجود تھے۔ ان تینوں لڑکیوں کو نکال کر اوپر کمرے میں لایا گیا تو ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ اس کی پہلی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، یہ شخص پاگل اور سائیکو ہے۔ یہ لندن میں کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا جس نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے یہ ساری لڑکیوں کو بے وفا اور دھوکے باز سمجھنے لگا تھا، اسی لیے یہ شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی سے اس لڑکی کا بدلہ لینے کے لیے اسے قید کر دیتا ہے۔ پھر چچی بتانے لگی کہ اس لڑکی کے جانے کے بعد یہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، لیکن اب مجھے لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میرے شوہر اسد کا جب راز کھلا تو وہ چیخنے چلانے لگا۔ ہم نے اسی وقت اسے ہسپتال داخل کروا دیا، لیکن اس کی باقی تینوں بیویوں نے اسد سے طلاق لے لی اور چچی نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے آدھی جائیداد دے دی تھی۔ میں اب ڈاکٹر بن رہی ہوں اور میں نے اپنے شوہر اسد سے طلاق نہیں لی، کیونکہ چچی اور میں مل کر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔